بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی، بلکہ اچھی کیا گزری ہوں گی، چھٹیاں گزار گزار کر تنگ آ گئے ہوں گے اور ابھی پڑھائی کا نیا جذبہ لے کر آپ کلاس میں آئے ہوں گے اور سیمسٹر شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جیسے سیمسٹر شروع ہو تو ہم بھی میدان میں کود پڑیں اور پھر ہم اس سیمسٹر کو پچھلے سیمسٹر سے اور بہتر بنا سکیں اور کوشش کر سکیں، اور جو لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکے وہ اور محنت کریں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں یا میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یا پھر بالکل تھک گئے، عربی سے بھی تھک گئے اور پڑھائی سے بھی تھک گئے اور اب سرٹیفکیٹ لینے کے انتظار میں ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ میں نے آپ کی کلاس کو بڑا باہمت پایا ہے، بڑا محنت کرنے والے لوگ پائے ہیں، بڑی کوشش کرنے والے لوگ پائے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے سیمسٹر کی طرح اس سیمسٹر کو بھی یادگار سیمسٹر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب پچھلا سیمسٹر جو تھا نا آپ کا، اس کے اندر عربی دو تھی نا، ایک میں پڑھا رہا تھا اور ایک سر عرفان، ایسا ہے نا؟ جی سر، جی ایسا ہی۔ سر۔ اچھا، سر عرفان نے آپ کو کیا پڑھایا ذرا بتائیں، چونکہ نحو کو ہم نے بانٹ دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ نحو آپ پڑھیں میں صرف پڑھاؤں گا، تو میں نے نحو تھوڑی سی پڑھائی اور باقی ہم نے صرف پڑھی۔ تو سر عرفان کے ہاں آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھی، کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا سکتے ہیں؟ سر مرکبات پڑھے ہم نے، اچھا تذکیر و تانیث پڑھے ہیں، اچھا، وحدت و جمع پڑھا ہے، اور صحیح، جملہ اسمیہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی پڑھا ہے، ٹھیک، اور اوزان کلمات پڑھے ہیں، اور جمع مکسر پڑھی ہے بس۔ چلیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، مطلب یہ ابتدائی معلومات جو عربی کے متعلق ہے نا وہ آپ نے پڑھی ہے وہاں پر۔ جی، اچھا، انشاء العربیہ بھی پڑھی تھی یا نہیں؟ ریپیٹ کریے گا سر۔ انشاء العربیہ ایک کتاب ہے۔ نہیں سر، پہلی بار نام سنا ہے، یہ تو عربی کا معلم کتاب ہے، صرف وہ پڑھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ کا وہاں پر سر عرفان کے پاس سی سی تھا نا، CC1؟ جی جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں جو یہ سلیبس ہے نا آپ کا، اس کے اندر انشاء العربیہ بھی ہے، ایک بک ہے اور اس کا پہلا پارٹ پہلے سیمسٹر میں تھا اور دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ دوسرے سیمسٹر میں ہے، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو سب سے اہم چیزیں ہیں نا میں آپ کو فوکس اس پہ کر رہا ہوں جو آپ کو آگے بہت زیادہ کام دیں گی۔ تو انشاء العربیہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں، ویسے تو اس کے بہت سارے صفحات ہیں، اگر اس کے اندر کچھ مختصر چیزیں پڑھا دوں تو بہتر رہے گا، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو کچھ اور بنیادی چیزیں بھی پڑھنی ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ آپ کا ابھی جو CC2 ہے وہ کون پڑھا رہے ہیں ابھی آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا کس کا نام ہے؟ سر عرفان کا ہی سر نام ہے۔ CC2 سر عرفان ہی پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان سے بات کر لوں گا کہ وہ آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں اور میں آپ کو کیا پڑھاؤں، تاکہ ڈبل بھی نہ ہو اور جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو سب کی سب آپ کو پتہ بھی چل جائیں، تاکہ جو اگلا سال ہے آپ کا فائنل ایئر کا وہ آپ کا بہتر طریقے سے گزر سکے اور آپ کو کہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو عام طور پر طلبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو
बहरहाल हमने जो पिछले सेमेस्टर में चीज़ें पढ़ी ना, मैं आपको याद दिलाऊं कि हमें ऐसा नहीं कि मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन यह है कि आपसे वो चीज़ें मतलूब हैं, आपसे वो चीज़ें मतलूब हैं। इसका मतलब ये, क्लास में तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिर से ज़मायर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे अगर मैं टेस्ट लूंगा या वाइवा लूंगा या सवाल मैं आपसे करता हूं, तो उन चीज़ों से भी मैं पूछूंगा आपसे, तो आपको चीज़ें वो भूलनी नहीं, वो आपको वो चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भूलनी नहीं है। अच्छा, हमने जो चीज़ें पिछले सेमेस्टर में पढ़ी हैं, हमने उसमें जो बहुत अहम चीज़ें पढ़ी थी, एक तो मारिफ व नकरा पढ़ा था हमने, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, मौसूफ सिफ़त और उनका फ़र्क, और उसके अलावा वाहिद तस्निया जमा हमने भी पढ़ा था। सर इरफान ने भी शायद आपको फिर से पढ़ाया, जमा मुकस्सर आप बता रहे। और उसके अलावा हमने ज़मायर पर खुसूसी तवज्जो दी, ज़मीरों पर खुसूसी तवज्जो दी, और वो तवज्जो आपकी हमारे इस सेमेस्टर में भी रहेगी और अगले सेमेस्टर में भी, अगले साल भी, चूँकि प्रोनाउन के बगैर कोई भी ज़बान नामुकम्मल है, ज़मायर के बगैर कोई भी ज़बान नामुकम्मल। तो वो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद करनी है। अगर वाइवा होता है तो वो चीज़ें पूछूंगा, और वैसे भी अगर मैं आपको लफ्ज़ों की अलग तशरीह बताऊंगा तो तब भी मैं वो चीज़ें पूछूंगा आपसे, उनको फिर से रटना है, आपको फिर से याद करना है। अगर कोई चीज़ आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो अब तो एक सेमेस्टर गुजर गया और आपने इम्तिहान भी दे दिया, तो फिर से अपने अच्छे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। हमारी क्लासेस तो जारी रहेंगी। दुआ करते हैं कि आपका अगला हफ्ता जो है वो फिजिकल की तरफ आ जाए, ताकि बेहतर तरीके से हम ये चीज़ें पढ़ सकें और समझ सकें। तो ज़मीरों के साथ साथ आपने पिछले सेमेस्टर में गर्दानें भी याद की। सिर्फ सगीर की पूरी गर्दान आपने याद की। बाब कौन से याद किए थे? दाराबा यदरिबु, और सर सिर्फ ये सर्फ सगीर में सिर्फ यही करवाया था, ज़राबा अच्छा, यज़रिबु। सही। और सर्फ कबीर में भी मतलब यही करवाया होगा फिर? जी। अच्छा, अब यह है कि जो बाकी है ना 5 बाब, बाकी जो 5 बाब है ना, उसी तर्ज पर है, बिल्कुल ऐसे, बस जेर जबर का फर्क है और उसको आपको रखना है। और वो जेर जबर का फर्क भी सिर्फ इसमें ज़र्फ तक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हमारी तवज्जो इस सेमेस्टर में भी सर्फ पे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नहव आपको फिर सर इरफान पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहव की तरफ आएंगे। कुछ चीज़ें आपको याद करने की हैं, मैं आपको कहूँगा कि वो याद करते रहें, और कुछ चीज़ें जो पढ़ने की हैं तो वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको क्लास में मैंने आपको बताया था, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, और सारे ही आप अच्छे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा, ये मैं मिसालें लिख के बता देता हूँ। दाराबा फ़अला, यदरिबु यफ़इलु। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, ये है फ़अला और यफ़इलु, और इसको हमने कहा दाराबा यदरिबु। ये देखें, ये ज़बर है और यहाँ पर ज़ेर, फ़अला दाराबा यफ़इलु यदरिबु। अगला हमने क्या पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको बताया तो था, और वो है फ़अला, यहाँ पर भी ज़बर, और यफ़उलु, यफ़उलु। अब ये होगा नासरा यंसुर। यंसुरु।
अच्छा, ये है नासारा, जबर इस पे देख रहे हैं आप, जबर है। और अब इसके बाद है फ़ाआला यफ़इलो, और ये बाब होगा फ़ाआला है चूंकि, तो यफ़इलो, हसबा यासिबु। नहीं वो हासिबा है, ये है फ़ाआला यफ़इलो। मना यमनउ। नहीं नहीं नहीं, हासबा यहसिबु, हसबा हसबा, ठीक, हासिबा है वो। अ, अभी इसको सर बाप, ये फाला यफइलु तो हो गया ना, ज़रबा यज़रिबु, ये फाला हाँ यफअलु होगा ना। हाँ हाँ, ठीक है या ठीक है फल ठीक है, हाँ, मना आपने यमनउ से। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने ये तो लिख लिया था ना, सही। ये अच्छा अच्छा, आपने माना याद किया या फातहा याद किया था, क्या याद किया था आपने? हमने सर, समिया फतहा भी किया था, यस्मा माना भी किया था। अच्छा, जो भी याद किया है खैर, तो चूंकि एक जैसा है, असल आपका हमारा मतलब ये है कि आप सिर्फ ये दाराबा यदरिबु सिर्फ ये लफ्ज नहीं है, हमारे पास सैकड़ों हजारों लफ्ज हैं जो इसी तर्ज पे आ रहे हैं। तो हम अब इस दफा ये कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिकल करने की, कि हम निकालें, कुरान से निकालें, कुछ हदीस से निकालें, और अगर हम बुक पढ़ते हैं ना, तो वो भी हम इस तर्ज पे पढ़ेंगे। और इसको फतह यफ्ता हो कहें या माना यमना हो कहें, एक ही बात हो गई। अच्छा, अब यहां पर होगा, इसको हम जबर दे देते हैं, फाऊला, फाऊला, और बल्कि फाऊला से भी पहले हम इसको फ़ाआला यफ़अलु हो गया, और जी, इसको फ़ाउला, लेकिन फ़ाउला जो है ना, यफ़उलु, ये हो जाएगा शारुफा यशरुफु। अच्छा, इसके बीच में एक और है, फ़ाइला, फ़ाइला यफ़आलु, और ये है आलिमा, आलिमा, और इसको सामिया भी कहते हैं, सामिया यस्माउ भी, बल्कि मैं इसको एक जैसा कर दूं, सामी आ यस्माउ। अभी एक बाकी है, वो है फाइला यफ़इलु, और सर ये हो गया करीमा यकरीमु, हासिबा यास, करीमा यकरीमु भी था। वो ये यही है, ये शारूफा कारूमा, ये एक है। अच्छा, इसको जरा गौर से देखिए आप, कि ये है ना फ़ाअला, ये तीनों एक जैसे हैं। मैं इसके रंग भी एक जैसे कर दूं, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये तीनों एक जैसे हैं, फ़ाअला, और ये तीनों ये चेंज हो गए, यहां पर चेंज हो गए। ये फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअला, फ़ाअला के बाद ये चेंज हो गए, यफ़इलु यफ़उलु यफ़अलु, यफ़ यफ़इलु यफ़अलु यफ़उलु यफ़अलु, ये तीनों एक जैसे हैं। दाराबा नासारा मना, इनका माजी एक जैसा है सबका। माजी एक जैसा होगा तो क्या होगा, आपने जैसे पढ़ा था ना, दाराबा दाराबा दाराबू, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। नासारा नासारा, नासारू, नासारत, नासाराता, नसरना, नसरता, ये भी बिल्कुल सेम होंगे। इन तीनों का माजी एक जैसा हो गया। और अब ये है यदरिबू, यदरिबू, तो यदरिबानी यदरिबूना, तो यहाँ पर रे जो ऐन कलीमा कहते हैं हम इसको, ये ऐन है ना, ये देख रहे हैं ऐन है, ये ऐन है, हम इसको क्या कहते हैं, ऐन कलीमा।
ये है आइन कलीमा और ये है आइन कलीमा। तो ये आइन कलीमा है। जी, आइन कलीमा देखा आपने, ये आइन कलीमा है, इसमें जो चेंज हो रहा है ना वो आइन कलीमा चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो चेंजिंग है वो आइन, यहाँ पर भी यही है, माजी में भी यही है, ये आइन कलीमा चेंज हुआ ना ये, और ये भी आइन कलीमा चेंज हुआ, और ये भी। माजी और मुजारे में जो सुलासी मुजर्रद के बाब है ना उनमें चेंजिंग यही है। तो अब हमें ये गौर करना पड़ता है कि हमने कहा दाराबा यदरीबू दरबन, अब हम कहेंगे नासारा यनसुरु, जहां जहां मुजारे आएगा उसके अंदर ये चेंज हो जाएगा, उसके अलावा नहीं। मुजारे कब आएगा? देखिए आप, नासारा यनसुरु, यनसुरु हुआ, नसरन फहुवा नासिर, नोसिरा युनसरु मजहूल एक जैसा है। उसके बाद आएगा फजा का मंसूब, लम यनसुर, हमने वहां पढ़ा था लम यदरिब, लम यनसुर, अच्छा मजहूल फिर एक जैसा, लम युनसर लम युदरब एक जैसा। ला यनसुरु ये तब्दील हो गया, वहां पर पढ़ा था ला यदरिबु, लन यनसुरा, लन मेरे ख्याल में हमने पढ़ा भी नहीं शायद, या पढ़ा था। अच्छा, अमर में भी चेंज होगा और नहीं में भी चेंज हो जाएगा, बस मजहूल में नहीं, मारूफ में। इसी से बाप बनेंगे। लेकिन एक दफा, ये इतना आसान है, आमतौर पर स्टूडेंट्स को जब मैं वाइवा लेता हूँ ना तो वो क्या करते हैं, एक बाब सुनाया, थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम लेते हैं, या बीच में कोई और स्टूडेंट आता है और वो फिर से उसको रिपीट करते हैं और जबान पे चढ़ जाता है बस। लेकिन याद रखने का है, याद रखने का यूं है कि मैं आपको कुरान शरीफ से खोल के बताता हूँ, कुरान शरीफ से खोल के बताऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी। अभी देखिए आप, मैं कोई आसान सी सूरत बताता हूँ, ये देखिए आप, फेल माजी पे आते हैं हम, फेल माजी और मुजारे, बाकी नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ ये मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अच्छा, ये आपका, ये सुलासी मुजर्रद नहीं है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। ये भी सुलासी मुजर्रद नहीं है, ये भी सुलासी मुजर्रद नहीं है। हाँ ये है। अब मुझे बता सकता है कोई कि ये कौन सा बाब होगा? ये कौन सा बाब होगा, कोई बता सकता है? कौन सा सर लफ्ज समझ में सर नहीं आप आया, कौन कौन सा सा? पूछ रहे हैं, कौन सा वाला पूछ रहे हैं? एक मिनट, बल्कि मैंने ये शेयर नहीं की, ये फाइल जो है ना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी अपनी। जी ये है, ये अब हो गई ना ये? फ़अला यफ़उलु से सर कफ़ारा यकफुर। कोई और? सर नसरा यंसुरु वाला है, नासारा यंसुरु। यनसुरु, ऐशा यनसुरु। आप ये नासारा तो ठीक है, यहाँ से तो बात समझ में आ गई। नासारा, नासारा, नासारू, ठीक है ना? काफारा, जी काफारा उसने कुफर किया, काफारा, जी। काफारू। लेकिन मुजारे तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो आपको कैसे पता चला? मुजारे यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। देखें, ये है नासारा, काफारू यानी काफारा, इसको मैं ये वाव हटा देते हैं, हाँ ये है काफारा। अब इसका जो मुजारे है वो क्या है? यकफुरु है, यकफारू है, यकफिरु है, क्या है? यकफुरु। यकफुरु। यकफुर।
यकफुरू का कैसे पता चला आपको? सर ये वजन पर आ रहा है ना, यकफुरू के वजन पर आ रहा है। यकफिरू भी तो हो सकता है। सर कुरान में दूसरी आयतों में है सर यकफुरूना। हाँ, ये हुई ना बात। जब माजी आपके पास आपको मिल जाए तो मुजारे आप तलाश करें कुरान मजीद में, सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान। हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें यकफुरू, हम यकफुरूना शायद हमें तलाश करने की जरूरत ना भी हो, वाहिद भी मिल जाएगा। देखिए मैंने ये लिखा है यकफुरू, बहुत सारी जगहों पे है यकफुरू, ये देख रहे हैं यकफुर, ये आखिर में जज़म आ गई लेकिन फे के ऊपर तो पेश है ना, फमई जी यकफुर, सर। फे के ऊपर तो पेश आ गई ना, ये देख रहे हैं आप, जी सर। फे के ऊपर पेश आ गई। और यहाँ पर ये असल में, यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर जी ये है यकफुरू, मिल गया आपको? तो मतलब ये हुआ कि हमें अगर माजी मालूम हो जाए, माजी तो पता चल जाएगा ना आपको। माजी अभी फिर देखें, हमने कौन सा लफ्ज देखा था, यहाँ पे थे ना हम, काफारू, काफारू, जी सर। ये है काफारू। काफारा तो पता चल गया आपको, अगर काफारा पता चल गया तो ये तो यकीन हो गया कि ये काफिरा नहीं है, ये बाब नहीं होगा, और ये भी नहीं, और ये तीनों नहीं, ये तीनों बाब नहीं हो सकते। ये तीनों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका अयुल फेल कसरा है और सर मतलब कि आइन कलमे से हमें पता हाँ। चलेगा कि ये बाप कौन सा है। बिल्कुल ऐसा है, आइन कलीमा से पता चलेगा। अभी जब आपको काफारा का पता चल गया तो अब आपको यकीन हो गया कि ये तीन बाब नहीं हो सकते। ये तीन इसलिए नहीं हो सकते, तो ये तो आइन कलीमा कसरा है और ये है जबर, और ये आइन कलीमा कसरा है और ये है जबर, और ये आइन कलीमा पेश है और ये है जबर। तो हमारे पास इहतिमाल है इन तीनों का, इन तीनों का हम देखेंगे। हो सकता है आप कहें कि ये यकफिरू होगा, हो सकता है आप कहें कि ये हो यकफिरू या यकफरू, ये जमना हो। तो हम देख लेंगे कुरान मजीद में, हमें फौरन पता चल जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर जैसे अब जैसे जो हाफिज हैं उन्हें तो पता होगा कि ये वर्ड कुरान में इस तरह आया है, इसका मुजारे, लेकिन जो हाफिज नहीं है उन्हें तो नहीं समझ में आएगा कि इसका कोई ऐसा वर्ड आया है कि नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा फिर? आप ऐसा कर लें, आप ये कुरान शरीफ का कोई भी ऐप ले लें, अपने पास इंस्टॉल कर लें। अगर चाहें तो ये कंप्यूटर में कर लें जैसे मैंने किया हुआ है, और मोबाइल ऐप भी है ना कुरान शरीफ के, बहुत सारे हैं, मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें अपने पास, और उसमें ऑप्शन होता है लफ्ज़ों के, यानी ऐसा ऐप इंस्टॉल करें कि जिसके अंदर लफ्ज़ों के सर्च का ऑप्शन आता हो, जिसमें लफ्ज़ों के सर्च का ऑप्शन आता हो, वो इंस्टॉल कर ले तो आपको सर फौरन मिल अगर वो जाएगा। पता हो आपको तो आप बता दें, हम लोग डाउनलोड कर लेंगे वो वाली। यानी कोई ऐप की बात कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं। वैसे ये जो 360 है, इसके अंदर आप जरा सर्च का ऑप्शन है कि नहीं, जरा चेक करें आप। अच्छा, इजी कुरान और हदीस भी है ना, इसके अंदर भी सर्च का ऑप्शन है। ये देखिए आप, ये जो उर्दू में मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को सबको बताता रहता हूँ, ये इजी, आप जरा देखें आप, इजी कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, ये देख रहे हैं आपका इजी कुरान और हदीस, और ये है इजी कुरान और हदीस। ये डाउनलोड यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, इसका मोबाइल ऐप भी है। इसमें मोबाइल ऐप भी है और इसमें तो तफसीरें भी हैं, आपको बहुत काम की चीज़ है। अच्छा जी, ये है कुरान मजीद के 150 से ज़्यादा तराजम और सारे तर्जमे हैं। ये इसका डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर, ये है डाउनलोड,
इसी से ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल करें। ये उर्दू की ये सारी किताबें भी हैं, आप देख रहे हैं, हदीस की सारी किताबें और भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। दावत इस्लामी का एप्लीकेशन भी है अल मदीना लाइब्रेरी से। अच्छा, ये है डाउनलोड, ये डाउनलोड यहाँ से, और 6.5 ये सबसे मेरे ख्याल में लास्ट वर्जन यही है। अब यहाँ पे क्लिक करें, मेरे पास किया हुआ है, तो आप ये इसमें भी ऑप्शन है। अच्छा, अगर अरबी में हो, अरबी में भी मैं आपको अरबी में बता देता हूँ, अरबी में अभी आपको बता देता हूँ कि तत्बीक कहते हैं अरबी में ऐप को, एप्लीकेशन को तत्बीक कहते हैं। तत्बीक मुसफ, तत्बीक मुसफ अल मदीना। मुसफ अल मदीना बहुत प्यारा कुरान शरीफ है, बहुत प्यारी लिखाई इसकी, और ये आप वहाँ से आप इसमें आप अपने मोबाइल से ये लिखें आप, और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये मोबाइल से बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत बेहतरीन। हम आमतौर पर रिसर्च में भी स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें। ये जो है ना, ये ऐप है, ये मोबाइल की भी, और यहाँ से चूंकि ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ये लिखा हुआ इंस्टॉल, मदीना जी। ये चूंकि मोबाइल ऐप है यहाँ पर, वैसे इसके लिए भी है, और इसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं जो आमतौर पर हमारे यहाँ किसी और ऐप में नहीं है। जी, ये यहाँ से है, ये यहाँ से मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये मोबाइल के लिए यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा और भी होंगे, आप ज़रा सर्च करें, आप देखें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपका ये मसला यहाँ से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ला यख्फा, ला यख्फा, अभी ये जो है ना मुअत्तल है, आपको इसमें परेशानी हो जाएगी। मुअत्तल है, मुअत्तल का मतलब आखिर में हर्फ इल्लत आ जाए, और हर्फ इल्लत क्या है आपको बताए थे ना, हर्फ इल्लत अलिफ वाव और या। जब हर्फ इल्लत आ जाते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है, लेकिन इतना आपको यकीन हो गया कि फे कलमे के ऊपर जबर आ रहा है, तो इसका अगर माजी मिल जाए तो ये आपको मुजारे की समझ में आ जाएगी। यख्फा, मैं इसका माजी बताता हूँ, ये है, मैंने माजी लिखा है इसका। अच्छा, ये माजी नहीं आया, ये है इस्म। अच्छा, कभी हम जो है ना इसके वाव के साथ भी लिखते हैं, वाव के साथ भी हम लिखते हैं, और यहाँ पर भी नहीं। अच्छा, आप अपनी हाजिरी लगा लें, मैं आपके लिए चैट खोल दी, आप हाजिरी लगा लें, ये चैट खुल गई है, हाजिरी अपनी लगा लें फौरन। अच्छा, चलें, ये मोतल वाला आपके लिए मुश्किल है, और हम आगे चलते हैं और लफ्ज़ को देखते हैं। ये मज़ीद ये मुजर्रद नहीं है, और ये भी मोतल है, तो आपके लिए ये भी थोड़ा सा मोतल नहीं है, हाँ ये वो है महमूस। सर मेरा अटेंडेंस नहीं हो रहा है। अच्छा, बाकी लोगों की हो गई, तो अटेंडेंस मतलब आप अपना नाम उसमें लिख दें और हाजिरी नंबर आपको शो करना है, और कुछ भी नहीं। आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ये बात है। नाम चेंज करने पर तो मैंने पाबंदी लगाई हुई है।
नाम पे तो मैंने लगाई है पाबंदी, चेंज ना हो। अच्छा, अभी आगे चलिए आप, और यहाँ पर हम देखें यालमू, ये आ गया लफ्ज। अच्छा, अभी तो बड़ा आसान है ना, आपको पता चल गया यालमू ये कौन सा बाब है, अलीमा यालमू, बल्कि हमने ये यहाँ पर सामिया लिखा है ना, ये कौन सा बाब होगा? समिया यस्माऊ। हाँ, ये होगा सामिया यस्माऊ। कैसे पता चला आपको? सर यालमू से, आइन कलमे से। आइन कलीमा से। लेकिन आपको माजी का कैसे पता चला कि ये सामिया है? मीम के नीचे आइन कलीमा में जेर कैसे पता चली? सर कुरान पाक में आया है अक्सर इस तरह। हाँ, लेकिन जिसको नहीं मालूम तो वो क्या करेंगे कि इसको तलाश करें कि मैंने इल्म लिखा है, ये इसमें ये है कद आलिमा। कद आलिमा ये है माजी, तो माजी में आपने देखा नीचे ऐन कलीमा में जेर है, तो मतलब ये सामिआ हो गया। ऐन कलीमा के नीचे जेर है तो मतलब ये हो गया सामिआ यस्माउ। अच्छा, अब आगे जरा मजीद इसको देख लें, और कोई लफ्ज यकूलूना, ये चूंकि मुअत्तल है तो आपको, आपके लिए अभी ये मुश्किल है, ये भी आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मुअत्तल आपके लिए अभी मुश्किल है। ये सर ये कफर, इसमें आया ला युखलिफू, ऊपर आया था अभी। और वो बाब वो मुजर्रद नहीं है, असल में मुजर्रद नहीं है। मैं अभी मजीद तो अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम मजीद की तरफ जाएंगे। अभी हम अभी मुजर्रद देख रहा हूँ मैं। सर ये अच्छा, काला यकुलू से, तो कवाला कवाला से होगा। वो कवाला है। अच्छा, ये अभी चूंकि मजहूल है, और अभी मजहूल का भी आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप तलाश करना चाहें तो हो जाएगा। अभी ये है मजहूल। मजहूल सब एक जैसे होते हैं, मजहूल बनाने का तरीका आपको बताया था मैंने, वो एक जैसे हैं। लेकिन आप इसका मारूफ भी जान सकते हैं। मारूफ कैसे जान सकते हैं? मैं इसका इसी को कॉपी करता हूँ और डाल देता हूँ, जरा देखिए आप। ये मैंने डाल दिया इसको, और अब मैं इसको तलाश करता हूँ। अच्छा, नहीं है तो सीन को हटा देते हैं, फिर सीन को हटा देते हैं। ये आ गया, ये मारूफ आ गया। तगलिबूना, तो क्या हुआ? कौन सा बाब होगा ये? अच्छा, आइन कलीमा बताइए कि कसरा है कि जबर है कि जेर है, क्या है आइन कलीमा पे? क्या है कसरा। आइन कलीमा? कौन सा है? लाम है। लाम का कैसे पता चला आइन कलीमा लाम है, कोई और नहीं? सर इसका कैसे? असल गैन गैन लाम बा होगा ना। हाँ, ये देखें, ये नून तो वैसे है ना, ये वाव जमीर हो गई ना, तो ये है लफ्ज। असल में लफ्ज ये है। तो सर ता तो मुजारफ का अलामत है, तो गैन लाम और बा होगा तो बे हो गया, तो आइन आइन कलमा कलीमा लाम होगा। कसरा। अच्छा, अब आइन कलीमा पे जेर आ गई तो माजी क्या होगा? गलबा। हम देख लें, अब इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। गालाबा है या गालिबा है या क्या है? गलबा यगलिबू होगा सर। अच्छा, अगर जरा नहीं, जी, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा तलाश करना आ जाए कि ये हम कैसे बाप निकालेंगे। आपको ये असाइनमेंट इस टाइप का दूंगा मैं आपको। हाँ, ये देखें, गालाबा, ये गालाबू आ गया ना, ये है गालाबा, गालाबू, ये है गालाबू। तो गालाबू में क्या चीज हम हटाएंगे? अलिफ जमा का और वाव, गालाबा। जमा। अच्छा, अब इसको उल्ट कर दें, गालाबा, गालाबा और गलबा यगलिबू। जी, ये लगा दें आप, ते को हटाएं और इसमें ये लगा दें, गालाबा यगलिबू। कौन सा बाब होगा? दाराबा यदरिबू। ये समझ में आ रही है आप कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर आप?
جی سر. سلاسی مجرد کے باب جو ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو سلاسی مجرد کے کسی باب تک پہنچنا، لیکن ہم ابھی یہ چاہیں گے کہ ہم سلاسی مزید فی تک بھی پہنچیں، اور سلاسی مزید فی اتنا مشکل نہیں ہے جتنے ہم ابھی مشکل ہو رہی ہے نا ہمیں. سلاسی مزید فی اتنی مشکل نہیں ہے، اس کے ہر باب کی الگ ایک نشانی ہے. اس میں آپ کو ماضی مضارع میں اس طریقے سے آپ پریشان نہیں ہوں گے کبھی بھی، اس سے آسان ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو ہے نا ہر باب کا وزن جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، یعنی تھوڑی اس میں چینجنگ کچھ زیادہ ہے. اس میں صرف زیر زبر کی چینجنگ ہے، اس میں لفظوں کی چینجنگ زیادہ ہے. تو یہ جو 6 باب ہیں ضرب یضرب کو چھوڑ کر باقی آپ کو یہ یاد کرنے ہیں اس سمسٹر میں، اور یاد آپ نے ایک کر لیا تو باقی آپ کی زبان پہ چڑھانے ہیں. یاد کرنے کا مطلب یہ، اور میں جو آپ کو اسائنمنٹ دوں گا اس میں سے آپ کو یہ نکالنے ہوں گے، اور نکالنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا ہے. کسی پہ جانا نہیں، یاد رکھیں. یعنی اگر آپ نے یہ چاہا کہ میں کسی سے پوچھ کے حل کر لوں گا اور بیٹھ کے ہو جائے گا، تو یہ پھر آگے چل کے آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی. جب میں ویوا لوں گا یا سمجھنے کی کوشش کروں گا تو پھر نہیں ہوگا آپ سے. یہ آپ کو خود وہ طریقہ سمجھنا ہے، اور یہ طریقہ تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کو خود گردان یاد ہوگی. اگر گردان ہی یاد نہیں ہوگی تو طریقہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. واضح ہے نا؟ جی سر. جی سر. تو کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ معصومہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اویس کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر اگر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت جو یاد ہے نا قرآن شریف سے، تو اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ. کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے آیت الکرسی ہمیں یاد ہے نا، ہم یاد آیت الکرسی سے آپ دیکھ لیں کتنے لفظ ہوتے ہیں. یہ عالمہ یعلم تو اسی میں آ گیا یہ. اور آخری جو صورتیں ہمیں یاد ہیں ان میں بھی یہ لفظ بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے دیکھیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ گردانیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا وہ آپ کو پھر سے یاد کرنی ہے. اور آپ سے مل کر ہم کوئی دن طے کر لیں گے کہ اس کو ہم کب شروع کرتے ہیں اور کب اس کو سنانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ تاکہ آپ کا جو ہے نا شروع سے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں. اور پھر میں آپ کو ثلاثی مزید فی کے ابواب بتاؤں گا انشاءاللہ. تو سر ابھی یہ کل بھی آن لائن کلاس ہوگی؟ ہاں بس کل آن لائن ہے، اگلے ہفتے امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ ہماری کلاس جو ہے نا وہ فزیکل کی طرف آ جائے. کل تو انشاءاللہ آن لائن ہوگی، اور آپ کی جو اٹینڈنس ہے میں یہ شیٹ پہ کوشش کروں گا چڑھا لوں. اور حافظ رمشہ ہیں، جب کلاسز وہاں سے ہماری فزیکل ہوں گی تو شیٹ لے لیں گے، ورنہ پرانی شیٹ پہ ہی ہم چڑھا دیں گے. تو آج دوسری میٹنگ نہیں ہوگی ہماری، یہی 40 منٹ کی کلاس ہے آج بھی اور کل بھی، اور اس کے بعد تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہماری ویسے ہی پورے ٹائم پہ چلے گی. اویس کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم